Welcome back to Interact with Intellect. Today we'll take a detailed look at what is called marketing. There are a lot of people who believe that marketing is something relating to advertising. A lot of people think that marketing is something negative because you make people convinced to buy something which is, well, sometimes they don't even need. However, what marketing actually is, we'll discuss in detail. By the way, marketing is the process of understanding and then satisfying the customer needs profitably. In the simplest possible definition, this is how we define marketing. But, and as per the definition that we discussed, it's a very simple process, understanding the customer needs and then satisfying them in a profitable manner. However, the actual practices are not that simple. First of all, understanding the customer is a big challenge. Why? Because customers are who? Customers are human beings. And being human beings, we have a continuously changing set of needs. By the way, before we move forward, we must understand what is the difference between needs, wants, and demand. We all, in order to live and in order to survive and stay in a particular society, we all are in need of certain things. For example, our one of the basic need is food. We need to eat something whenever we are hungry. Now, to satisfy these particular needs, we have options available with us. For example, अगर आपको इस वक्त कुछ प्यास लग रही है तो आप अपनी प्यास कई तरीकों से बुझा सकते हैं. आप पानी पी सकते हैं, फाइन. आप मिनरल वाटर की बोतल लेके इस नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. आप पेप्सी की बोतल कंज्यूम कर सकते हैं. और जैसे कि आजकल स्प्राइट कोशिश कर रहा है, प्यास बुझाओ स्प्राइट के साथ, आप वो भी कर सकते हैं. There are numerous options that are available to you. Now the question is that whenever we have a need, we think of various options that are available to us, and we may want to have one of these options or many of these options in order to satisfy these needs. ये वैसे ही है जैसे if I need to travel और मुझे एक कार की ज़रूरत है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे कार कौन सी चाहिए. I want to have a Mercedes Benz, or I want to have a Hummer, or maybe a BMW, or maybe a Suzuki, but need basically is the same. Once we have these wants with us, तो फिर देखा जाता है अगली चीज, that is the purchasing power. If I'll have enough money in my kitty to buy a Mercedes Benz, I will go and ask. I'll say that, okay, I need a car, but please give me a Mercedes Benz and here is the payment. So, if I want something and I cannot buy that because I don't have enough money, then this want will never convert into a demand. Please remember, organizations are interested in people who can create or who can go for a demand, who can demand for their product, right? Because people, n number of people around the world can have a wish, can say that we want to have your product, but unless and until they don't have money, they are not of use to the organization. So, in the process of understanding the customers, हम पहले देखते हैं कि वो needs क्या हैं जो customers की हैं, जो unmet हैं. उन needs को customers कैसे satisfy करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें से कौन सी needs हैं जो हम अपनी product या अपनी service के through बहुत अच्छी तरह से और profitably हम customer तक पहुंचा सकते हैं. My dear friends, जो difference आया है over the last 50 years now, वो difference ये है कि आज से 50-60 साल पहले आप पहले product बनाते थे और फिर market में जाके कहते थे भाई ये product है, खरीद लो. Today, we investigate first that what is needed in the market, and then we design our product, and then we go to the market and say that, okay, this is available. So the chances that the customer might stand up and say that, well, we don't need your product,
ये चांसेस बहुत हद तक कम हो गए। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई प्रोडक्ट्स डेवलप की, मार्केट में लॉन्च की और वो प्रोडक्ट्स फेल हो गई। यू नो द रीजन? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट प्राइमरीली अगर लोग जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, अगर उनको ये चीज समझ में नहीं आई that this is going to solve some of our problems or this product is going to be, providing us some kind of benefit or utility, people won't buy that product. आइए कोई एग्जाम्पल सोचते हैं। आज से कोई आई कैंट इवन रिमेंबर कितने साल पहले, कोई 20-20 साल पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी ने, वेरी बिग इन FMCGs, एक साबुन लॉन्च किया। उस साबुन की खास बात ये थी, उन्होंने ये खुद सोचा था कि साबुन क्या होते हैं, आजकल वो लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो जल्दी घुल जाते हैं, तो प्रॉब्लम है, ख़र्चा ज़्यादा होता है लोगों का, तो क्यों ना ऐसा साबुन बनाया जाए जो ज़रा देर से घुले। तो उन्होंने एक ओवल शेप्ड साबुन बनाया। उस साबुन की खास बात ये थी दैट इट वाज रॉक सॉलिड। आप उसको किसी को खींच के मारे तो वो सीधा खड़ा भी नहीं हो, पथराव में भी काम आ सकता था वो, ये उसकी स्ट्रेंथ थी। और उन्होंने मार्केट कैसे किया उसको, उन्होंने कहा कि जनाब दिस विल लास्ट लॉन्गर, आप इसको ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये इतनी आराम से घुलेगा नहीं। लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया उसको। जब उसका पहला बैच मार्केट में आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, वो ये कि वो किसी चीज पे टिकता नहीं था और लोगों के ड्रेन्स में जाके फंसना शुरू हो गया वो। सिंस इट वॉज एन ओवल शेप्ड सोप, तो वो स्लिप होता था, लोगों के ड्रेन्स में जाके फंस जाता था, उसको फिर निकालना एक मुसीबत होती थी, आप उसको फिर बड़े मुश्किलों से निकालते थे। सो मार्केट से एक फीडबैक आया कि भाई आपने प्रोडक्ट तो बना दी बट ये तो रुकती नहीं है, किसी चीज़ पे स्लिप होती है और सख्त भी है। तो फिर उन्होंने उसके नीचे शेप कर्व दिया उसके अंदर। जब वो कर्व दे दिया तो उसके बाद एक मजीद फीडबैक आया और वो फीडबैक ये था कि जनाब सख्त तो बहुत है, चलता भी बहुत है, लेकिन झाग नहीं बनाता। एंड लोगों को आदत थी बहुत सारे झाग के साथ नहाने की। नतीजा, हैवी एडवर्टाइजिंग, हैवी मार्केटिंग, हर बड़े बजट के बावजूद वो प्रोडक्ट फेल हो गई। नाउ व्हाट इज द लेसन? द लेसन इज that unless and until you have not studied the market properly and you have not tested your product properly, आप बहुत अच्छे बजट के साथ, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग के साथ भी फेलियर का शिकार हो सकते हैं। So therefore, हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे अभी कि हम कैसे अपना मार्केटिंग प्रोसेस कैसे डिजाइन करें, क्या क्या स्टेप्स लें उसमें, so that the chances of a backfire are minimized. इस प्रोसेस में सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। What is market analysis? Market analysis is basically a study of the market. It basically helps us understand the kind of competition which is there, the kind of segments that are there, the kind of competitor products that are there, उनकी pricing strategies क्या हैं, इस वक्त customer किस तरह से इस market को perceive कर रहा है, and so on so forth. For example, अगर आप पाकिस्तान में अगेन कार मार्केट की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई कार मार्केट में इस वक्त कितने प्लेयर्स हैं, कितनी किस्म की गाड़ियां मौजूद हैं, कस्टमर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, 800 सीसी में कितने ऑप्शंस हैं, 1000 सीसी में कितने ऑप्शन हैं, हाउ मेनी आर देयर इन 1300, 1800, एसयूवीज में कोई है या नहीं है, मिनी वैन्स में कोई है या नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके साथ हम देखेंगे कि कस्टमर्स का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, अब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट किस तरफ जा रही है, क्या ये मार्केट इकोनॉमिकल कार्स को प्रेफर कर रही है या ये मार्केट अब स्पोर्ट्स यूटिलिटी की तरफ जा रही है और एक्साइटमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। जब आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली इससे आपको एक चीज़ कंक्लूजन के तौर पे नज़र आती है और वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी मार्केट, यू टॉक ऑफ एनी मार्केट व्हाटसोएवर, उसमें कभी भी कस्टमर 100% satisfied नहीं मिलते आपको। There are always gaps in the market. There are always opportunities in the market that you can identify, pinpoint and hit. How can we forget the example of Easy Paisa? आपका क्या ख्याल है, Easy Paisa अचानक one fine morning किसी को ख्वाब में आया और उसने next morning launch कर दिया? No. They must have studied the market for quite some time. कैसे?
बेसिकली दे ब्रॉट, उन्होंने क्या देखा कि पाकिस्तान की 16 करोड़ की आबादी में एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन, बिलीव मी, अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर यूजिंग द बैंकिंग सर्विसेज। बैंक्स लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और अगर पहुंच भी रहे हैं तो लोग उनसे खौफजदा हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अंग्रेजी में फॉर्म फिल करना पड़ता है, मुश्किल काम है, बैंक कौन जाए, चेक कौन लिखे, पीपल आर स्केयर्ड। प्लीज रिमेंबर, वी आर लिविंग इन अ कंट्री where a large number of people live in rural areas. They are not very highly educated. They are not qualified people like me and you. So उनके लिए अंग्रेजी फॉर्म फिल करना is a problem. अंग्रेजी में चेकबुक भरना नहीं, हमसे नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि वो लोग बैंकिंग की सर्विसेज से हो गए दूर। इजी पैसा ने क्या किया? इजी पैसा ने बैंक को उठा के उनकी परचून की दुकान पे पहुंचा दिया, यूजिंग अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। They used the telecom infrastructure, and now the same people can very conveniently open accounts, can very conveniently withdraw and deposit cash, और उसके लिए ना उनको शहर जाने की ज़रूरत है, उसके लिए ना उनको कोई अंग्रेजी का फॉर्म फिल करना है, और उनको उनके घर के आसपास उनकी सर्विस मिल गई, और वो भी जानने वाले फेसेस हैं। जाहिर है परचून की दुकान मोहल्ले के आसपास ही होती है, पीपल नो देम बाय फेस। नतीजा न्यू मार्केट, नतीजा बिग बिजनेस, नतीजा प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? नाउ जब आप मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं और आपको कुछ आइडिया हो जाता है दैट ओके व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दैट आर लाइंग इन द मार्केट, देन द नेक्स्ट पार्ट इज कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। किस एज ग्रुप के लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, What is it that they are actually trying to get? क्या वो कोई प्लेन सिंपल जरूरत है जो इस प्रोडक्ट से पूरी हो रही है, या कोई और हायर नीड है which they are trying to satisfy? For example, some people buy certain products because they have a need for that, and some people buy a certain product because उन्होंने उससे बरमबाजी करनी होती है। So what is basically the reason why people are buying a certain product? That is also important for us to understand, because once we understand that reason, we'll be able to talk to the customers, we'll be able to redesign or reconfigure our product according to those requirements. Customer understanding plays a very very crucial role, और ये हमें कहाँ से मिलता है? कस्टमर एनालिसिस से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज जोंग की बात करें तो जोंग का टारगेट कौन है? जोंग का टारगेट मार्केट है यंगस्टर्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। आप उनकी एडवर्टाइजिंग में आपको कभी हाई फाई लोग नहीं नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज उन्होंने एनालाइज किया दैट द मासेस ऑफ दिस कंट्री, द मेजर चंक ऑफ दिस मार्केट इज बेसिकली लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास पीपल। और उन्होंने कहा कि जी स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ और फ़ोन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर गाइज, नॉट लाइक मी ऑब्वियसली। सो इन्होंने कहा कि क्यों ना इस यंग मार्केट को फोकस किया जाए, और आप देखिए उसी हिसाब से उन्होंने पैकेज डिफाइन किए। उसी हिसाब से वो कभी आपसे कहते हैं कि जी 7 रुपये में 700 SMS कर लें, कभी आपसे कहते हैं कि जी 4 रुपये में 10 रुपये में पूरी रात बात कर लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और आप पूरी रात उस फोन पे ज़ाया कर देते हैं, अगले दिन कॉलेज में सो रहे होते हैं। होता है ना ऐसा? सो कस्टमर एनालिसिस बेसिकली हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर कस्टमर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिविजन और व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स दे हैव। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज से कोई गुड 30 years बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 1982, पाकिस्तान में पहली बार पैक हुआ हुआ मिल्क आना शुरू हुआ, जिसको हम कहते थे टेट्रा पैक में आता था मिल्क, और उसका नाम था मिल्क पैक। नेस्ले ने लॉन्च किया, और पर्पस क्या था? बिकॉज दे आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ मार्केट ग्रोइंग इनसाइड पाकिस्तान, जो उनको जो अभी दूध की सप्लाई मिल रही है उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, एंड दे आर इन नीड ऑफ समथिंग बेटर देन दैट। क्या हुआ? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस मार्केट को मैच्योर करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई वो मार्केट। ऐसे नहीं हुआ कि डे 1 पे मिल्क पैक बिकेम अ बिग प्लेयर, नो, दे ग्रेजुअली गेन्ड मार्केट शेयर्स, और आहिस्ता आहिस्ता होते होते दे बिकेम अ लीडर। फिर उसके बाद उस मार्केट में हलीब आ गया, फिर उसमें और छोटे 4, 5, 6 प्लेयर्स आ गए। अब आप एज ऑफ टुडे अगर देखें तो उस मार्केट में
There are giants like Allpers, which is challenging Milkpack in a big way. Then you have Milkpack and Noorpur and Halib is also there, and so on and so forth. So ये need initially ये market identify किसने की थी? Milkpack ने. और Milkpack आज तक एक major chunk लेके एक major बड़ा leader बना हुआ बैठा है. क्यों? Because they were able to identify what the customers are going to be needing. So with the help of customer analysis, we try and find out what are the different type of customers who are there. Customer कौन है यहाँ पे? All those people who have the potential to buy our product, who have got the purchasing power, who want to have our product and who have this purchasing power to buy our product. Now, market को let's say अगर हम shampoo market की बात करें, but before we discuss shampoo market, I hope we remember the term market. बहुत सारे लोगों को ये misunderstanding है that market is a place where buying and selling takes place. शायद इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये डेफिनेशन ठीक होगी, बट जब हम मार्केटिंग में बात करते हैं तो हम प्लेस का वर्ड ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करते. हम कहते हैं दैट अ मार्केट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर customers. So a market is the collection of all those people who are currently interested in buying our product or who have the potential to buy our product in the future. That basically makes or forms the market for a particular product. अगर आप शैम्पू की बात करें तो शैम्पू हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? शैम्पू हम यूज करते हैं टू हैव क्लीन हेयर. सो पहली चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे, दैट इज when somebody is buying a bottle of shampoo or a sachet of shampoo, he is not interested in that liquid, he is not interested in that bottle. He or she is actually interested in the utility that they will get out of it. So they are what they are actually buying. When they are buying a shampoo, they are actually buying clean hair. ये समझना क्यों ज़रूरी है? ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाद ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चीज़ों पे फोकस कर जाती हैं जो उनकी बेसिक प्रोडक्ट ऑफरिंग से साथ मैच नहीं कर रही होती. सो टू अवॉइड दैट वी मस्ट स्टिक टू द बेसिक रीजन व्हाई पीपल विल बाय आवर प्रोडक्ट. ओके, अगर शैम्पू मार्केट में ही रहें और हम कहें कि जनाब पाकिस्तान में, अज्यूम करते हैं, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, अज्यूम नंबर्स हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान में जनाब 10 करोड़ लोग शैम्पू यूज करते हैं टोटल. तो 10 करोड़ की ये एक मार्केट है जिसमें लोगों ने शैम्पू परचेज करना है और उन्होंने अपने बाल उससे धोने. क्या सारे के सारे 10 करोड़ लोग जो हैं उनकी शैम्पू की रिक्वायरमेंट सेम होगी? बाल तो सबको, अल्टीमेट बेसिक नीड तो सबकी सेम है, दे वांट क्लीन हेयर, बट डू यू थिंक ऑल ऑफ देम हैव सेम काइंड ऑफ हेयर? नो, देयर आर पीपल विद द प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ. There are people with chemically treated hair. There are people with curly hair. There are people with silky hair, and so on and so forth. There are kids. There are these babies जिनको नोट ईयर चाहिए, उनकी आंखों में चला जाए तो उनको मिर्चें ना लगे, right? There are people, especially kids, with the problem of lice. तो क्या हम एक शैम्पू से पूरी मार्केट को सर्व कर सकते हैं? No. क्या करना पड़ेगा? We need to identify these groups of customers जिनकी मिलती जुलती नीड्स हैं. कि if we want to satisfy a particular group of customers जिनकी प्रॉब्लम क्या है, डैंड्रफ, तो हम इनके लिए कोई अलग एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे बाल भी साफ होंगे, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो तो उनको डिलीवर होगी ही, बट इन एडिशन टू दैट दिस विल हेल्प देम इन रिमूविंग देयर डैंड्रफ एज वेल. अभी क्या हुआ, ये उन 10 करोड़ की मार्केट में से मे बी कोई 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके सर में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, और ये बन गया एक सेगमेंट. इसी तरह से कुछ ऐसे लोग निकले जिनके सर में जो बाल हैं वो बहुत रूखे हैं, ड्राई हेयर हैं, उनके लिए अलग प्रोडक्ट बन गई. कुछ ऐसे लोग मिले जिनके केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, वो एक अलग सेगमेंट बन गया. सो हुआ क्या कि हमने उस 10 करोड़ की मार्केट को, जिसकी बेसिक नीड कॉमन थी, बेसिक नीड क्या है, टू हैव क्लीन हेयर, उसको हमने ज्यादा प्रिसाइसली डिजाइन प्रोडक्ट्स देनी शुरू की जो उनकी नीड्स को ज्यादा अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सके.
याद रखिएगा, जब कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है तो यूजुअली वो प्रोडक्ट जेनेरिक होती है, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं होते। जैसे आज से अगर ये शैम्पू की एग्जांपल पे अगर हम रहें तो आज से कोई 25-30 साल पहले शैम्पू एक ही किस्म का शैम्पू होता था, सारे घर के लोग उसी से नहा लेते थे जिसने शैम्पू यूज़ करना हो। बट एज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक है। आज क्या होता है, घर में बच्चे हैं, बच्चों का शैम्पू अलग होगा, अगर बेबीज़ हैं घर में तो उनका शैम्पू अलग होगा, उनकी मदर का शैम्पू अलग होगा, उनके फादर का शैम्पू अलग होगा, उनकी ग्रैंड मदर का शैम्पू अलग होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। द रिजल्ट इज दैट यू आर स्पेंडिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी एज अ कंज्यूमर, यू आर स्पेंडिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी ऑन शैम्पूज टुडे कंपेयर टू द पास्ट। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग अ बेटर सर्विस, बेटर यूटिलिटी एज वेल। सो ये बेसिकली सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अपनी मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बेसिस हम डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स, और फिर उन ग्रुप्स को प्रिसाइसली हम उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना के ऑफर करते हैं। ये डिवीजन जियोग्राफिक भी हो सकती है, यानी कस्टमर्स को आप जियोग्राफिक बेसिस पे भी कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे भी कर सकते हैं, एज ग्रुप के बेसिस पे भी कर सकते हैं, इनकम ग्रुप्स की बेसिस पे भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कस्टमर एनालिसिस में मेजर काम जो हमने करना है, जो मेजर चीज ढूंढनी है, वो है कस्टमर सेगमेंटेशन। कितने सेगमेंट्स हैं और किस सेगमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द सेकेंड पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन कस्टमर एनालिसिस इज के मोटिवेशन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपल टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट और बाय आवर प्रोडक्ट। अगेन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, बाज प्रोडक्ट्स खरीदी इसलिए जाती हैं बिकॉज दे सर्व अ पर्पस, दे गिव यू अ यूटिलिटी, but there are certain products which are basically a status symbol. So if in Pakistan people are buying Honda Civic, it is definitely serving their purpose of traveling around, but for some it is a status symbol as well, right? So उसको फिर Honda को अगर ये बात पता हो कि हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदी जा रही है इस पर्टिकुलर मार्केट में, तो वो फिर उसको उसी हिसाब से पोजीशन करेंगे, उसी हिसाब से उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसको फिर एज अ स्टेटस सिंबल प्रमोट करेंगे। कस्टमर एनालिसिस में एक तीसरी चीज भी हम ढूंढते हैं और वो है अनमेट नीड्स। वो कौन सी ऐसी जरूरियात हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कस्टमर को चाहिए, जिसकी कस्टमर जरूरत रखता है, बट दे आर नॉट येट सेटिस्फाइड। आज से कुछ अर्से पहले तक हमारे घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में मॉपिंग के लिए एक लिक्विड यूज होता था, बड़ा तेज स्मेल होती है उसकी, हम उसको कहते हैं फिनाइल, राइट? बड़ा एंटी बैक्टीरियल किस्म का उसका इमेज है। लोग समझते हैं जनाब बस जहाँ फिनाइल से पोछा लग गया वहाँ पे सब सारे हर किस्म के कीटाणु मर गए। However, there was a need for a liquid which not only should be able to kill the germs, but which should have a good pleasant smell as well. Please remember, जिस जगहों पे फिनाइल हम नोट करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा फिनाइल इस्तेमाल होता है, वहाँ उस पूरे इन्वायरमेंट में वो स्मेल बैठ जाती है एंड इट्स इरिटेटिंग एट टाइम्स। सो ज़रूरत की एक चीज़ थी, एक ज़रूरत की किस चीज़ की थी कि एक ऐसा एंटी बैक्टीरियल मॉपिंग लिक्विड अवेलेबल हो जो समहाउ जिसकी प्लेजेंट स्मेल भी हो, जिससे वो जो तकलीफदेह किस्म की बदबू है वो ना आए। Dettol identified that. Reckitt Benckiser. What they did, they launched this liquid जो कि रिप्लेसमेंट बन गया है, बनता जा रहा है फिनाइल्स का। बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल उसकी क्वालिटी मौजूद है, वैसे ही है, बट एट द सेम टाइम इट स्मेल्स मच बेटर। तो क्या हुआ, थ्रू कस्टमर एनालिसिस उन्होंने ये चीज़ नोट की, उन्होंने ये चीज़ ढूंढी कि कस्टमर्स को इस किस्म की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, and they launched it and they are making money, they are successful in doing that. So we understand all this कि ठीक है जी, कस्टमर एनालिसिस से हमें सेगमेंटेशन का आइडिया हो गया, कस्टमर एनालिसिस से हमें जो मोटिवेशन है, जो रीज़न है फॉर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट वो पता चल गया, और इसके साथ साथ हमने देख लिया कि कस्टमर की अनमेट नीड्स कहाँ पे हैं। बाय द वे, ये सब करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पे देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें हेल्प करती हैं, जो डेटा गैदर करती हैं, लोगों के व्यूज़ गैदर करती हैं, और फिर कंपनीज उस डेटा को यूज़ करके
अपनी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और फिर कस्टमर को वो उसी हिसाब से ऑफर करते हैं. Once we have a clear understanding of what kind of segments are there, कितने कस्टमर, कितने मार्केट में सेगमेंट्स हैं, किस सेगमेंट का क्या साइज है, किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, मोटिवेशन क्या है, अनमेट नीड्स क्या है. Once we have all this data with us, the next step is targeting. Now, targeting क्या है? Basically, अगर एक मार्केट में 10 सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, आप 6 के 6 सेगमेंट्स को एक गो में हिट नहीं कर पाते सही से. There are problems in doing that. Either you have to have a very large budget or लोग आपको फिर एक जेनेरिक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, आपको फिर ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं समझेंगे. So, क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको फिर टारगेट करना पड़ेगा that okay, I know there are 6 segments in the market, but which one I am actually targeting. Sometimes ऐसा भी किया जाता है कि कोई ऐसा सेगमेंट होता है जो प्रेजेंटली अवेलेबल या आइडेंटिफाइड नहीं होता. कोई पर्टिकुलर कंपनी अपनी मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू एक नया सेगमेंट क्रिएट करती है या एक एग्जिस्टिंग सेगमेंट को डिवाइड करती है. एग्जांपल, क्लियर शैम्पू. हेड एंड शोल्डर्स यूज्ड टू सेल एंटी डैंड्रफ शैम्पू और वो कहते थे जनाब आपके सर में डैंड्रफ है, आप ये इस्तेमाल कर लें. आप उनके एड्स रिकॉल करें, उसमें खवातीन भी दिखाई जाती थी, उसमें हजरात भी होते थे. दोनों किस्म के लोगों को एक ही शैम्पू से चला रहे थे. वो सही था, कोई मसला नहीं था. क्लियर ने आके क्या किया? क्लियर ने आके कहा कि वी नो योर हेयर बेटर एंड वी नो दैट men have a slightly different kind of hair and their skull has a different, there are different chemical secretions there. So the chemicals or so that the shampoo needed by men should be different from women. What they did, they actually divided the anti-dandruff segment into 2 parts, men and women. इसी तरह से बाज ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स भी देखने में आती हैं जहां पे कोई सेगमेंट जो पहले से प्रीवियसली इस तरह से हाईलाइटेड नहीं था उसको हाईलाइट कर दिया जाता है. आपसे कुछ अरसे पहले मार्केट में आपने नाम सुना होगा, देयर वाज दिस डॉक्टर्स टूथपेस्ट और उनका फोकस कौन था? स्मोकर्स. व्हाट दे डिड, दे सेड कि इफ यू आर अ स्मोकर, yes, I can see some smokers sitting in the studio, okay? So if you are a smoker, then your teeth will require some special treatment and that special treatment will be given to you through our toothpaste. So with the help of targeting हम identify कर लेते हैं कि हमारे कौन से segments ऐसे हैं मार्केट के जिन पे हम concentrate करेंगे और उसके थ्रू हमें ज़्यादा बेहतर focused approach लेने का हमें मौका मिल जाता है. जब हम ये सारे काम कर लेते हैं तो फिर हमें आगे डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज क्या होंगी. मार्केटिंग मिक्स समझने के लिए मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं चाट की प्लेट की. मेरा ख्याल है हम सब ने, आपने भी चाट की प्लेट तो ट्राई की होगी. चाट की प्लेट में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ 6, 7, 8 आइटम पड़े हुए होते हैं उसमें. अगर सारी चीज़ें मौजूद हों उसमें, लेकिन समहाउ उसमें वो जो 1 चमचा मसाला डला हुआ होता है या चाट मसाला होता है या कोई मिर्च टाइप की चीज़ होती है वो ना हो, तो आप कहेंगे यार सब कुछ ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा. सिमिलरली अगर उसमें से नमक कम हो, बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं, प्लीज़ रिमेंबर, कोई एक आइटम कम कर दीजिए, इट वॉन्ट गिव यू द रिक्वायर्ड टेस्ट. बिल्कुल इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग की पूरी एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए भी हमें इसमें कम से कम 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. कितने? 4. एंड वी कॉल देम द 4 P's, क्योंकि ये चारों जो आइटम्स हैं ये चारों P से स्टार्ट होते हैं. सबसे पहली चीज है इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. ये 4 P's बेसिक फाउंडेशन है पूरे मार्केटिंग प्लान की. अगर हम इन चारों का सही कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वैसे ही है जैसे चाट की प्लेट में अगर सही कॉम्बिनेशन में आइटम्स पड़े हुए हों तो आप कहते हैं वाओ बहुत मज़े की चाट है. लेकिन अगर इसमें कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो आप कहते हैं नहीं, मज़ा नहीं आया. इसी तरह से मार्केटिंग मिक्स जिस चीज़ का नाम है वो भी इन 4 मसालों को मिला के बनता है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ऑफर सम प्रोडक्ट। अभी हम इस वक्त अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स पे रहें तो ज़्यादा आसान रहेगा। प्रोडक्ट क्या होती है जनाब? प्रोडक्ट एक ऐसा आइटम होता है, फिजिकल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको कोई यूटिलिटी मिलने वाली होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया दैट व्हेन यू बाय शैम्पू यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द शैम्पू, यू आर इंटरेस्टेड इन द क्लीनलीनेस दैट इट विल गिव टू योर हेयर। इसी तरह से जब आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फिजिकल बॉडी ऑफ द एयर कंडीशनर, आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि इससे मुझे ठंडी हवा, यूटिलिटी क्या मिलेगी। ठीक है, सो पहली चीज आपका प्रोडक्ट, उसका डिजाइन कैसा है, क्या वो अच्छी तरह से कस्टमर नीड्स को सर्व कर सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट के साथ उसकी पैकेजिंग भी मैटर करती है कि उसकी इन सम केसेस प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग ऐसी आती है कि कस्टमर्स उसको बाज़ औक़ात किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। आइसक्रीम के डब्बे को हमारे यहाँ जो प्लास्टिक के उसके जो डब्बे आते हैं उसको बहुत सारी ख़वातीन जो है वो खाना फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, तो दिस इज़ उसका पैकेजिंग है जो जिसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट में हमें उसके साथ साथ उसके फीचर्स, इन सम केसेस अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी जो सर्विसेज हैं और उसका जो बैकअप सपोर्ट है वो भी उसके साथ ही शामिल हो जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, प्रोडक्ट्स दो तरह की होती हैं, आपको डिफाइन करना पड़ता है। कुछ हैं जिन्हें हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स कह लीजिए, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड द अदर्स आर नोन एज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वैसे हम उस डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कंज्यूम होकर घिस के ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें कपड़े भी आ सकते हैं, जूते भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो वैनिश नहीं होती वो उसमें आ जाती है। सो आपकी प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्राइस, उसकी जो उसके फीचर्स हैं वो सारे मिल के आपकी बेसिक प्रोडक्ट को की शेप बनती है। अब आपने अगर बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना ली जो कस्टमर्स के लिए इंटरेस्टिंग भी है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी है, तो फिर अगली चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम इसकी प्राइस क्या रखेंगे। क्योंकि प्राइसिंग पे हम बहुत तवील डिस्कशन अभी कुछ देर के बाद करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लें कि प्राइस हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट, यानी कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है और कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है, इट हैज़ टू बी रेलेवेंट विद दैट। यूँ समझिए कि अगर आपके पास एक बहुत उम्दा प्रोडक्ट हो that really serves the customers, that can serve the customers very well, उसके बावजूद आप उसकी प्राइसिंग irrelevant कर दें, बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर दें, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो आपको चाहिए। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट किस्म की प्राइसिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। विल डिस्कस दैट एट अ लेटर स्टेज इन दिस चैप्टर। सो पहला पी हो गया जनाब प्रोडक्ट। बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनानी आपने, लेकिन अगर प्राइसिंग सही नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी। हाउएवर प्रोडक्ट भी अच्छी है, प्राइसिंग भी रेलेवेंट है, लेकिन आपने प्रमोशन सही नहीं किया, तो फिर हम कहेंगे वो जो आपने उर्दू में सुन रखा होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेट्स से डेल ने एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड फोन बना लिया, अमेजिंग फीचर्स, बेटर देन द ब्लैकबेरीज एंड ऑल दोज HTCs एंड ऑल। हाउएवर आप खरीदना चाहते हैं एक एंड्रॉइड फोन, यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव मनी टू बाय दैट, आपको अगर पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? You won't buy that product, obviously. So unless and until products are not advertised, unless and until products are not promoted and customers are not informed about them, customers won't buy, right? So very important ingredient again is the promotion. पहले हमने फिर से इसको रिपीट करें मार्केटिंग में इसको, पहले हमने कहा we need to have a good product, but that's not enough. You need to have relevant pricing. That's not enough too. क्यों? क्योंकि तीसरी चीज ये है कि you have to use the right medium, you have to use the right sources, you have to go to the right customers at the right time and you have to inform them that your product is there, which will help them in satisfying a particular need. अब आइए चौथे P पे, that's the place. My dear friends, अब से कुछ अरसे पहले I happened to get some time to spend with my family and we were watching television, some television program, I can't recall.
उसके बीच में कोई एक न्यूली लॉन्च्ड आइसक्रीम का एड आ गया. आई होप वी ऑल नो ओमोर की बात कर रहा हूं मैं. बच्चों ने ऐड देखा एंड they went crazy because the ad was reasonably good. It was an attractive ad. So थोड़ी देर के बाद हमें we had to go somewhere. तो जब हम बाहर निकले तो बच्चों ने कहा नहीं जी हमें तो आइसक्रीम खानी है, ओमोर खानी है. And we went to the market and we found that there was no Omor available. You know what happened? We had to buy walls. What's the point? The point is कि आपने पहले तीनों पीस बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, बेहतरीन प्राइसिंग, अमेजिंग प्रमोशन, सब ठीक है. अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल टू द कस्टमर्स, क्या होगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट आपका कॉम्पिटिटर ले जाएगा. आपने नीड तो क्रिएट कर दी, आपने कस्टमर को एक्साइटेड तो कर दिया, वो एक्शन भी लेना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट, बट आपके कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं. सो जब वो शॉप पे जाता है जहां से ही और शी इज सपोज टू बाय योर प्रोडक्ट, वहां पे आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखता है और आपका प्रोडक्ट नहीं होता, तो आप अपनी एडवर्टाइजिंग से अपने कॉम्पिटिटर को सपोर्ट करने लगते हैं. वाओ, दैट्स स्कैरी, राइट? ओमोर का प्रॉब्लम ये था दैट दे इनिशियली लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन पंजाब बिकॉज उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के इश्यूज थे एंड दे थॉट दैट दे विल फोकस ऑन पंजाब इन द बिगिनिंग. बाय द वे ये 90s में वॉल्स ने भी इसी तरह से किया था. नतीजा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब आप पाकिस्तान के मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं तो ये आप नहीं कर सकते कि जियो पे ऐड आएगा तो वो सिर्फ लाहौर में दिखेगा, सिर्फ मुल्तान में दिखेगा और कराची में नहीं दिखेगा. So the advertising was going on everywhere across Pakistan, but the product was only available in a certain province. Result, I just discussed with you the result. So place is the fourth P, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ से कस्टमर आसानी उसको एक्सेस कर सके. दिस इज प्लेस. अब हम अगर इन चारों में से किसी एक मसाले को कम कर दें, प्रोडक्ट अच्छी ना हो, यू आर डेड. प्लेस अच्छा ना हो, यू आर नॉट एक्सेसिबल, प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल नहीं है. प्रमोशन सही ना हो, कस्टमर्स को पता ही नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो शायद वो इमेज सही ना बना सकें आप, वो कहेंगे हाँ घटिया सी प्रोडक्ट है. सिमिलरली अगर आपने प्राइसिंग सही नहीं की तो भी आप अपने जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे. सो प्रोडक्ट जब कभी आप मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली यू टॉक अबाउट दीज 4 P's. अब तक जो हमने बात की, ये मैं आपको एग्जांपल सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स की दे रहा हूँ. आई एम रेफरिंग टू आइसक्रीम्स एंड शैम्पूज एंड कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये सब फिजिकल आइटम्स हैं. सर्विसेज के बारे में क्या ख्याल है? क्या सर्विसेज पे भी यही 4 P's अप्लाई हो जाएंगे? क्या यही 4 P's इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जिसको ई मार्केटिंग कहते हैं, कैन वी अप्लाई दीज 4 P's ऑन ई मार्केटिंग एज वेल? द आंसर इज यस एंड नो. यस बिकॉज इसकी रेलेवेंस कुछ ना कुछ है, एंड नो बिकॉज ये कंप्लीट नहीं है. जब आप सर्विसेज की बात करेंगे तो फिर ये 4 से P's बढ़ के 7 P's हो जाएंगे. उसमें कुछ चीजें, कुछ आइटम्स, कुछ एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे. क्या याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जरा रिकॉल करें सर्विसेज होती क्या है, आप इर्द गिर्द कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं और क्या डिफरेंस है बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस. प्राइमरी फर्क जो है वो टेंजिबिलिटी का है. एक प्रोडक्ट एक फिजिकल टेंजिबल आइटम होता है. इफ यू कैन सी दिस लैपटॉप लाइंग हियर, दिस इज फिजिकल, यू कैन सी, टच एंड ब्रेक दिस इफ यू फील लाइक. बट ऑन द अदर हैंड एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि व्हेनेवर यू बाय अ प्रोडक्ट यू गेट द ओनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट. जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो वो आपकी हो जाती है. जब आप एक बॉल पॉइंट खरीदते हैं तो उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है. जब आप एक टी शर्ट खरीदते हैं यू ओन दैट. हाउएवर सर्विसेज में यू पे फॉर अ सर्विस एंड यू कंज्यूम दैट सर्विस. आप हेयर कट के लिए जाते हैं, आप हेयर कट लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, यू डोंट बाय दैट शॉप, राइट? उस शॉप के अंदर मौजूद कोई भी चीज आपकी नहीं होती, लेकिन आप पैसे दे के आते हैं. किस चीज के? उस सर्विस के. यू ट्रैवल इन एन एयरलाइन, राइट? वो आपको एक टिकट देते हैं, उसके बाद आप जहाज में जाते हैं, उसमें बैठते हैं,
वो कुछ खाना वाना भी खाते हैं, उसके बाद आप एक जगह पे उतर जाते हैं, फाइन, आपको ये सर्विस मिलती है, बट यू डोंट ओन दैट प्लेन, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, एंड द सर्विस पार्ट इज एक्चुअली इंटेंजिबल, राइट। सो जब कभी हम बात करेंगे अबाउट द सर्विसेज मार्केटिंग, तो वहां पे हमारे पास 4 P's से ज्यादा की बात होगी, और हम यहाँ पे 7 P's की बात करेंगे। जो एडिशनल 3 P's हैं वो क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। 1, services will always depend on people, the participants. किसी भी मेजर सर्विस की बात कर लीजिए, it will have something to do with people. Right now आपको जो सर्विस मिल रही है, जो आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, इसके पीछे भी लोग हैं ना। There are people who are making sure that you receive this lecture. Although I am delivering it, and apparently I am the only one who is doing this, but there is a whole team behind this. There are people behind the camera, there are directors, there are makeup people, and so on so forth, right? ये पूरी टीम, ये सारे लोग मिलके आपको एक सर्विस दे रहे हैं इस वक्त। इसी तरह से when you go to a pathological lab, आप जाते हैं, आप कहते हैं भाई जरा मेरा ब्लड टेस्ट कर दें, बड़े बूढ़े कह रहे हैं सफ़ेद हो गया, ज़रा चेक करें कितना सफ़ेद हुआ है। सो जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ लोग रिसीव करते हैं, आपसे आपका सैंपल लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको रसीद देते हैं, इंटरेक्शन है आपका। यू ट्रैवल इन एन एयरलाइन, आपका लोगों से वहाँ पे स्टाफ से इंटरेक्शन होता है, फॉर श्योर होता है। यू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, आप वहाँ से कुछ सामान लेने जाते हैं, आपका क्या लोगों से इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे जो स्टाफ होता है, फॉर श्योर होता है। सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली मीन्स दैट सर्विसेज आर रिलायंट, सर्विसेज आर डिपेंडेंट ऑन पीपल। सो पीपल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत रेयर ऐसा पॉसिबल है, बहुत रेयर केसेस में जहां आप बगैर पीपल इंटरेक्शन के कोई सर्विस रिसीव कर सकें। ऑल्दो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में हमने द रोल ऑफ पीपल उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की जब बात करते हैं और आप ई कॉमर्स साइट से कोई सामान खरीदते हैं जाके, तो आपका फिर फिजिकल इंटरेक्शन किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं होता, उसको रिप्लेस कर दिया उस वेबसाइट ने, और वेबसाइट्स के थ्रू आप उसको मैनेज करते हैं, बट स्टिल पीपल बिहाइंड दैट स्टिल रिमेन इंपॉर्टेंट। तो 5वां P हो गया जनाब, पीपल। द 6th P जो सर्विसेज मार्केटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में मैटर करता है, दैट इज द प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच यू गेट द सर्विस। एग्जाम्पल, आप एक हॉस्पिटल जाते हैं और कहते हैं भाई ये मेरे साथ एक पेशेंट है, इसकी तबीयत खराब है, इसको आप ट्रीट करें, इसको चेक करें, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसे नहीं करते, कहते हैं सर लेटाएं बस, अभी हम सब जो आप कहेंगे वो कर देंगे। वो आपसे कहते हैं कि सर पेशेंट को यहाँ बिठाइए या लेटाइए, एंड प्लीज़ गो टू अ सर्टेन काउंटर, वहाँ से कोई स्लिप बनवाइए, कोई पेमेंट कीजिए, उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है। Unless and until you don't go through that process, your patient won't be given treatment, right? Similarly, you go to an institution, you go to an educational institution and you want to get some educational services. क्या होता है? You just go there and sit down in the class, right? No, you have to go there, you have to pass their entrance test, you have to get admission into the institution, you have to pay some fee, and there is a whole process. जब आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर आपको वो सर्विस मिलनी शुरू होती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस आ गया ना बीच में। सो सर्विसेज के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस एक अटैच्ड होता है, और लोगों के लिए वो प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सो वी हैव डिस्कस्ड द 6 P's till now. Now let's talk about the last one, that is the physical evidence. Whenever you receive a service, there is always some kind of a proof. There is some kind of a physical item that you receive, which is a kind of an evidence that you got that service. You want to travel on an airline, you get a ticket, right? It may be an e-ticket, तो आपको सिर्फ print out ही चाहिए होगा उसका, but that's a proof. Similarly, you get a boarding pass, right? You get a luggage tag. All this is basically a physical evidence, because this is what you bring back after the traveling, and that basically reminds you that you took that particular service. If you attend a particular course, that's a service that you are receiving, and at the end of the course you receive a certificate.
That certificate is a physical evidence that you got that course. इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हैं. आप किसी लैब में जाते हैं, अपने कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई और ऐसी चीज़ सर्विस लेते हैं, उसका आपको रिपोर्ट मिलती है, उसकी एक रसीद मिलती है. सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिमाइंड पीपल about the fact that they received a particular service. So we have discussed the 7 P's of marketing. The art of marketing is basically to find the right combination of the 7 P's or the 4 P's, whichever is applicable in your product or service scenario. बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रमोशन पे कम इन्वेस्टमेंट करती हैं, but because of the price or through the word of mouth campaign they try and promote their product. There are certain other companies जो अपनी प्राइस भी हाई रखती हैं और साथ में प्रमोशन का बजट भी हाई रखती हैं. देयर आर सर्टेन अदर कंपनीज जो कहती हैं कि भाई हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा रिलाई करेंगे और हम प्रमोशनल बजट बहुत कम रखेंगे. आपने कितनी बारी रोल्स रॉयस के एड्स देखे हैं अखबार में? वेरी फ्यू ना, वेरी रेयर. दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल, दे आर स्टिल मेकिंग मनी. सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 P's है या 7 P's है, ये चेंज होता है. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट मार्केटर्स हैव टू फेस इज टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन. ये वैसे ही है जैसे आप अगर कोई डिश बनाने जा रहे हैं, कोई खाना बनाने जा रहे हैं या वही चाट की प्लेट बनाने जा रहे हैं, तो वो जो सही बैलेंस है दैट गिव्स एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट. दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की बात की. जब हम ई मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. जब आप इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को सेल करने की अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ वेबसाइट, यू हैव टू हैव लिंक्स अवेलेबल जहाँ मुख्तलिफ साइट से बिजनेस आपकी तरफ आ रहा हो. आजकल फेसबुक बहुत पॉपुलर एक सोशल मीडिया साइट बन गई है विच इज़ हेल्पिंग पीपल इन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स टू. आपको सर्च इंजन पे आपकी प्रोफाइल हाई रहनी चाहिए so that if somebody searches for a product or a category that is related to you, तो आप उस search में higher level पे जल्दी आप first few pages में आपको आना चाहिए. So once you are through with that, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा अपनी products को electronically market करना. Please remember, e-marketing is a booming concept. It's coming in and a lot of organizations are going for that. However, for certain types of products, this is very suitable. कौन सी प्रोडक्ट्स? यूँ समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट्स जिनको हम टच करके फील करके लेना चाहते हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पा रही, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेलिंग दीज लॉन्स एंड ऑल दैट. आजकल काफ़ी लॉन मैनिया चल रहा है, बट it's really difficult to convince a lady to buy a lawn suit over the net. Reason, वो जब तक उनको कपड़े की लुक एंड फील ना मिल जाए, जब तक वो उसको देख ना लें कि ये कैसा लगेगा, उनके लिए परसीव करना मुश्किल होता है कि अल्टीमेटली हाउ शी इज़ गोइंग टू लुक लाइक आफ्टर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ सूट. सो थोड़ी सी बाज़ प्रोडक्ट्स में लिमिटेशन है. अदरवाइज ई मार्केटिंग इज़ एन एमर्जिंग कॉन्सेप्ट. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलरेडी यूजिंग इट and new opportunities are also popping up in that area. So when we talk about e-marketing, your website or your web presence must have certain characteristics, certain elements जो उसको successful बनाने के लिए ज़रूरी हैं. आज e-marketing की जब कभी बात होती है तो we expect the website or your electronic presence to be interactive. Interactive का क्या मतलब है? That it must be responding to the customer's requests. ये वैसे ही है जैसे when you go to a shop, you ask a question and there is some salesperson there who responds to your query. तो आपकी एक interaction होती है वहाँ पे. Now when you are operating on the net, obviously that physical interaction with people is not possible. तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे the website has to respond, right? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे कुछ दिन पहले we were creating a website, an email address for one of our projects. And the website asked, what's your date of birth? So one of my colleague who was entering the data wrote the date of that very day. You know what was the response? The website said, well, you are too young to have an email account. Did you check from your parents?
Now it was a funny scene, obviously. The server did not stop us from opening an account, but we felt as if we are now conversing, we are having a conversation with the website. It was interactive. Similarly, e-marketing ke liye, it is important that the web service must be intelligent as well. Intelligent in the sense that whatever requirements, whatever kind of interests you have, whatever products you have picked up or you have shown interest in should be recorded somewhere, and it is usually recorded somewhere. And whenever you go back to that site again, similar topics are or similar products that are of interest to you are shown to you again and again. For example, when you go to YouTube, you find certain videos, and later on when you log in again, it will give you hints of videos that are new, that are available, and that are related to the topic that you searched for in the last attempt or so. So इसी तरह से e-marketing is always independent of location. You are never interested in knowing from which part of the world this particular site is operating from, and products are available to you at your doorstep in most of the cases. So the location of the server from where this service is being offered becomes, not an issue anymore. When you are talking about e-marketing, you are probably selling your products directly to your consumers, and in that case, the industry structure, remember the supply chain that we talked about earlier, that there is a producer, then the product goes to the distributor and the wholesaler and the retailer. That structure is usually changed. So when you go to a publisher's website and buy a book directly from the publisher, for example, आप McGraw-Hill की साइट पे जाते हैं और McGraw-Hill से डायरेक्टली एक बुक खरीद लेते हैं, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बुक सेलर्स, रिटेलर्स सब कहाँ गए? They are gone. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये फिर डिसइंटरमीडिएशन की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. We also refer to another characteristic which is called individualism. In normal electronic media, other than obviously the internet, it's really difficult to individualize a message. आप टेलीविजन पे एक ऐड देखते हैं, वो स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बना होता, उसको देखने वाले कई करोड़ कई अरब लोग हो सकते हैं. बट ऑन द इंटरनेट व्हेन यू विजिट अ पर्टिकुलर साइट, तो आपके लिए वो इंडिविजुअलाइज्ड मैसेजेस भी उसमें हो सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड सर्विस भी उसमें पॉसिबल है. स्पेशली इसकी एक वजह ये है दैट मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल मीडिया दैट वी हैव, इट बिलीव्स इन द पुश मॉडल ऑफ मार्केटिंग, whereby they design an advertisement and push that on the media, and it's available for everyone to watch whether they like it or not. But on the other hand, when you're talking about electronic marketing, then people themselves actually come to your site. So if they are interested, if they want to look at your site, only then they will come. This means that this is more of a pull model. So when somebody comes in, तो आप फिर उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उसकी चॉइसेस हैं, जो अभी हमने पहले इंटेलिजेंस में भी जिक्र किया, उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से उनको जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं. अनदर इंटरेस्टिंग फीचर दैट वी हैव with electronic marketing is the integration of a variety of mediums. For example, आप चाहें तो आप सिर्फ एक ग्राफिकल एड लगा सकते हैं, बैनर्स लगे होते हैं साइट्स पे, कोने में छोटे छोटे एड्स चल रहे होते हैं. आप चाहें तो उसके साथ साउंड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो उसके साथ पूरी एक मूवी चला सकते हैं, आप चाहें तो वहीं पे आप इंटरैक्टिव कोई एक नंबर दे सकते हैं कि जी ओके, यू आर इंटरेस्टेड, डायल दिस पर्टिकुलर नंबर. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग साइट्स, एंड दिस इज हाउ this concept has become very interesting, and a lot of opportunities are coming up with respect to electronic marketing. We are living in a world of brands. You look around, you travel on a road, you will find a number of billboards. You watch television, you will find n number of advertisements of various brands. You go to the net and you visit a popular site, you will always find advertisements of various companies, right? What are they doing? They are selling their brands, right? But the question is, what is a brand? देखिए, a product in its very basic definition is any item that basically helps you in fulfilling some of your needs. For example,
आपने कहा मुझे एक बॉल पॉइंट चाहिए ताकि मुझे जो लिखने की ज़रूरत है मैं वो पूरी कर सकूं. सो बॉल पॉइंट इज अ प्रोडक्ट that helps you in satisfying a particular need, right? However, when we give an identity and a personality to a particular product, it becomes different from the rest of the similar products. जब हम कहते हैं बॉल पॉइंट तो हम कहते हैं बॉल पॉइंट कोई भी बॉल पॉइंट हो सकता है, but when we say Parker, well, there is a brand, एक इमेज आता है उसका जहन में, हो सकता है आपके जहन में उसका लोगो भी आए, हो सकता है उस प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स भी आपके जहन में आने लगे. जब हम कहते हैं पियानो, जब हम कहते हैं इसी तरह से पिकासो, तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिनसे हमारे जहन में कोई बॉल पॉइंट प्रोडक्ट आती है. माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस तरह की मार्केटिंग के दौर में हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारी तरफ मैसेजिंग हो रही है. Different companies use different formats, they try different methods to convince you or to make you connected to their brands. कुछ organizations क्या करती हैं, that they ask certain celebrities, sports personalities, film stars to come and become their brand ambassadors. क्या होता है कि लोग because of these charismatic personalities उन ब्रांड से थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट परचेजिंग दोज ब्रांड्स जस्ट बिकॉज वी लाइक सर्टेन पर्सनैलिटीज. इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज अपने ब्रांड को किसी पॉपुलर स्पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. क्रिकेट, एज ऑफ टुडे क्रिकेट के साथ पेप्सी ने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता जोड़ा हुआ है. पेप्सी जो है वो आईसीसी को भी स्पॉन्सर करती है, पेप्सी बहुत सारी क्रिकेट टीम्स को भी स्पॉन्सर करती है. द रीजन इज that whenever people think of cricket, Pepsi should always come into their mind. ये आहिस्ता gradually वो इस तरफ आपको लेके जा रहे हैं. So इसी तरह बाज़ कंपनीज ब्रांड्स के साथ कोई कलर अटैच कर देती हैं, ब्राइट कलर्स कोई अटैच कर दिए जाते हैं, जो whenever you see, for example, whenever you see yellow, you will either think of Shell or Kodak, और येलो पे कई कंपनीज इस वक्त कंसंट्रेट करती हैं, ब्राइट येलो पे. So द आइडिया इज दैट आपका ब्रांड लोगों के जहन में किस जगह पे मौजूद है. अगर उसकी अच्छा इमेज है, लोग आपकी प्रोडक्ट को अच्छा समझते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी पोजीशनिंग अच्छी हुई है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपकी प्रोडक्ट को लोग ज़रा एक इन्फीरियर क्वालिटी समझते हैं, तो हम कहते हैं कि ओके, ये एक लोअर पोजीशनिंग इसकी ज़रा ख़राब है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. यू सी, व्हाट इज़ वेरी रेलेवेंट हियर इज़, I might be deviating from the main topic for a few minutes, but it's very important for us to understand that you and me are also brands. When we talk about politicians, when we talk about sports stars, when we talk about film stars, ये सारे लोग अपनी अपनी जगह ब्रांड्स हैं. सोचिए कैसे. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम जब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेते हैं या पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं, तो हमारे जहन में कोई ब्रांड आ सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपके जहन में कोक या पेप्सी आएगा, या हो सकता है दोनों आ जाएं. तो और जब मैं आपसे कहूँगा पेप्सी, तो आपके जहन में कुछ इमेजेस आएंगे, अच्छे या बुरे, ये आपकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं. इसी तरह से हर ब्रांड का जब आपके जहन में जब नाम लिया जाता है, तो आपके जहन में कुछ इमेज आता है. बिल्कुल इसी तरह जब मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जाते हैं, तो उनका भी कुछ इमेज आपके जहन में बनता है. कुछ लोगों के नाम, अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सुनते हैं, हम कहते हैं वाओ, दुखी इंसानियत की खिदमत में उन जैसे लोगों की मिसाल नहीं मिलती, राइट. इसमें कोई देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट. इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनका जब नाम लिया जाता है, तो सारे लोग उनको कुछ ऐसे अल्फाज लेके याद करते हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड भी नहीं करा सकता. सो देयरफॉर ब्रांडिंग क्या है कि हमने एज इंडिविजुअल अपने आप को किस तरह प्रमोट किया कि हमें लोग किन बातों की वजह से याद रखेंगे. क्या लोग हमें हमारी दयानतदारी की वजह से याद रखेंगे, और दे विल think about our professionalism or our straightforwardness or our miscommitments
और अवर टाइमलीनेस और अवर लेट अराइवल्स, वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग हमें याद रखेंगे। और ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, ये एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोटे मोटे, जिनकी वजह से लोग आपको याद रखते हैं। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं। चॉइस मेरी और आपकी है, हम अपने ब्रांड को कैसे पोजीशन करते हैं। आइए वापस चलते हैं ब्रांडिंग पे। इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कन्वेंशनल मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो हम काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, और हम ब्रांड्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रमोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर ई मार्केटिंग, तो हमें वहाँ पे ब्रांडिंग के साथ भी ई लगा देते हैं, ई ब्रांडिंग हो जाता है। इसका मतलब एलिफेंट ब्रांडिंग हरगिज़ नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडिंग। कई अप्रोचेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वन इज दैट जिस नाम से भी आप अपनी कन्वेंशनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, आप वही ब्रांडिंग एग्जैक्टली वैसी की वैसी वेबसाइट पे भी ले आए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपने कहा जी हम EBH हैं, वी सेल बूट्स एंड शूज़ एंड ऑल दैट, जो हमारी ब्रांडिंग हमारी शॉप पे है वैसी ही हमारी वेबसाइट है, कोई फ़र्क नहीं है, सब ठीक चलता रहेगा। कुछ कंपनीज इसके बरक्स क्या करती हैं कि जो उनकी कन्वेंशनल प्रोडक्ट है उसको वैसे ही चलने देती हैं, और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस या अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे देती हैं। अगर आप कैप्लान का टेक्स्ट यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक में, तो कैप्लान की जो रेगुलर बुक्स हैं उनके ऊपर वो तो कैप्लान है, फाइन, लेकिन जो उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसकी CD भी मंगा सकते हैं, उसका नाम उन्होंने कुछ डिफरेंट रखा हुआ है, वो उसको एंगेज कहते हैं। So what they have done, they have actually created a different brand to sell electronically. इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड नहीं है, तो you join hands with some existing brand which is selling on the net, और आप उसके साथ मिल के आप को ब्रांडिंग करके अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर देते हैं। एंड रेयरली, बट कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि वो एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रांड एक नए नाम से, एक नए पहचान के साथ काम शुरू करती हैं, और उस सर्विस को अपनी जो दूसरी सर्विसेज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंशिएट करके उसको प्रमोट करती हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की जब हम बात करेंगे तो वी मस्ट रिमेंबर द 7 P's, नंबर 1। और 7 P's क्या हैं? ये आपका मार्केटिंग मिक्स है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर वो 7 नहीं, वो फिर 4 P's की बात होगी। बट इफ़ यू आर सेलिंग ऑन द नेट, तो probably you are giving a service by offering products on the net, तो वहाँ पे फिर 4 P's अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ पे एडिशनल 3 P's भी अप्लाई होंगे, that we discussed earlier। इसी तरह से हमने 6 I's की बात की। ये वो 6 I's हैं जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं which should be there in any electronic marketing site, जिसमें interactivity, integration, industry structure and so on so forth that we discussed earlier। And finally हमने बात की जनाब कि electronic branding is also crucial in order to make sure that your brand is remembered and recalled and positioned in the right manner in the mind of the customers। My dear friends, marketing बहुत लोगों ने की, बहुत लोग कर रहे हैं। सेल्स एक बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा एग्रेसिव सा एक बिजनेस है, लोग कर रहे हैं। बट what we have learned over the years is that it's more costly to find a new customer than to retain an existing customer and get more business from an existing customer। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है that if somebody has already decided to come and buy your product and has already purchased your product, ठीक है, तो आगे उसी कस्टमर को फिर से उससे बिजनेस लेना एक आसान काम है इसके मुकाबले में कि आप एक नए कस्टमर को ढूंढें। ये चीज़ खास तौर पे एप्लीकेबल होती है उन बिजनेसेस में जहां आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनेज करना होता है। एग्जाम्पल्स बैंक्स, एग्जाम्पल्स सेल फोन कंपनीज। अब अगर हम बैंक्स की ही बात करें तो एक बैंक में आप गए, आपने अपना अकाउंट खोल लिया, राइट? अब पहला मेजर जो चैलेंज है दैट इज ऑलरेडी अचीव्ड, यानी आपके पास कस्टमर आप तक पहुंच गया। अब अगर बैंक थोड़ी सी एफर्ट करे और उसी कस्टमर को जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको बेहतर सर्विसेज दे सके, उसको मजीद अपनी सर्विसेज ऑफर कर सके, यानी मे बी इन अ बैंकिंग सिचुएशन आप उसको क्रेडिट कार्ड दे सके, आप उस कस्टमर को पर्सनल लोन, कार फाइनेंस, होम फाइनेंस, इंश्योरेंस, अगर ये प्रोडक्ट्स बेचनी शुरू करें तो वो आसान होगा
कम कॉस्टली होगा एज कंपेयर टू फाइंडिंग ऑल टुगेदर न्यू कस्टमर्स। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए यह सोचा गया कि फिर ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर्स हमारे पास जो आए वो रिटेन्ड रहें और उनको हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्विसेज दे सकें। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली पॉसिबल, you can only retain customers when you are treating them well, when you are giving them what they are actually in need of. And how can you decide, how can you ensure that you are delivering the right kind of service? By having a good understanding of the customer requirements. इस requirement को मेंटेन करने के लिए या इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने फैमिली रिलेशंस की भी बात करें, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई दोस्त फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स सब किस्म के लोग हो सकते हैं, इन रिलेशंस की भी इम्पोर्टेंस, इनमें क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है? योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड what are the things that you should not be doing with them, right? जब आप कस्टमर्स के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो वहां पे भी यही प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। A business must understand that what are the expectations of their customers. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस चीज को वैल्यू करता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप कस्टमर के साथ वैसा ही डील करेंगे जैसा वो आपसे चाहता है, एंड आपका रिलेशन फिर इन एनी केस खराब होने का चांस नहीं होगा। जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? यू विल बी एबल टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। आइए पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात करने से पहले हम जरा कस्टमर लाइफ साइकिल का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के फोकस में ही रहें तो कस्टमर का जो हमारा जो पहला टारगेट है दैट इज आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ कस्टमर्स, यानी वो कौन लोग होंगे, उनका क्या एज ग्रुप होगा, उनकी क्या एजुकेशन होगी, उनकी क्या प्रेफरेंसेस होंगी जो हमारी सर्विस या हमारे टाइप ऑफ बिजनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे। लेट्स से हम ऑनलाइन गेम्स सेल करते हैं, अज्यूम करते हैं हमने ऑनलाइन गेम्स बनाए हुए, पीपल कैन कम एंड एंजॉय द गेम्स एंड वी चार्ज देम अकॉर्डिंगली। वी नीड टू आइडेंटिफाई हु विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। क्या हमारे गेम्स में 60-65 साल 70 साल के लोग इंटरेस्टेड होंगे या 16, 18, 20 साल के यंगस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि ये जो चॉइस है हमारी, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी बेसिस पे हमें आगे कुछ फैसले करने होंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज identification and the correct identification of the people who might be interested in our product. Once you have done that, the second part, which is very very crucial in e-marketing especially, is customer acquisition. Acquisition क्या है? पहली बारी कस्टमर का आपकी साइट तक, आपके बिजनेस तक आना। आपने कहा हम बहुत जबरदस्त किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी साइट पे। Who cares? There are a lot of other people also doing that. Now you have to offer something, you have to do something that should bring your relevant people, your relevant customers to your website, right? और जब पहली बारी कस्टमर आपके पास आ गया और उसने आके किसी भी किस्म की कोई ट्रेडिंग, कोई किसी किस्म की आपसे परचेजिंग कर ली, तो आपका पहला मेजर चैलेंज अचीव हो गया। और वो क्या है? एक कस्टमर आपने एक्वायर तो कर लिया, पहली बारी आ गया आपके पास, उसको आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो गया कि फाइन, इफ आई गो टू दिस वेबसाइट, आई प्लेस ऑर्डर्स, ओके, आई कैन गेट समथिंग। अब यहां से आपका रिलेशनशिप पार्ट शुरू होता है। जब तक वो आपके पास आया नहीं था तो कौन सा रिलेशनशिप था भाई? कोई भी नहीं था। नाउ द कस्टमर इज विद यू, तो अब आप उसके साथ कस्टमर जो रिलेशनशिप है वो मैनेज करना शुरू करें। इन कस्टमर रिटेंशन, विच इज बेसिकली द थर्ड चैलेंज और द थर्ड स्टेप इन द लाइफ साइकिल, हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर अब जो आ गया हमारे पास उसको रिटेन कैसे करें। इसके लिए बहुत जरूरी है दैट देयर सर्विस एक्सपीरियंस शुड बी गुड। आप एक साइट पे गए, आप amazon.com पे गए, आपने कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी, राइट? पेमेंट भी कर दी क्रेडिट कार्ड से। उन्होंने कहा जनाब दीज बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू यू इन 4 वर्किंग डेज, और आपके पास बुक्स पहुंची 22 दिन के बाद। क्या होगा?
You will be dissatisfied. आप कहेंगे यार this is not a reliable site. I just don't want to deal with them again. Obviously, for obvious reasons. So एक दफा कस्टमर आपके पास आ जाए तो वहां पे कहानी खत्म नहीं होती, एक्चुअली वहां से कहानी शुरू होती है. तो अब आपको फिर ये इंश्योर करना होता है that you satisfy, you keep them satisfied with your service, with your quality of feedback, so that they should wish to come back to you again. अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप एडिशनल बिजनेस हासिल करेंगे विदाउट एनी सीरियस एडवर्टाइजिंग एफर्ट. जब आप रिटेन कर लेते हैं कस्टमर को तो फिर अगला स्टेप आता है उस कस्टमर को मजीद निचोड़ने का. दैट इज कस्टमर एक्सटेंशन. कस्टमर ने जितना पहले आपको बिजनेस देना था वो तो दे दिया, अब हम उससे मजीद बिजनेस क्या ले सकते हैं. व्हाट आर दोज रेलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनमें वो इंटरेस्टेड हो सकता है, उनको फिर आप तक पहुंचाया जाता है और आपको उनकी जो है ना वो डिटेल्स बताई जाती हैं, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपका उनमें कोई बाद औक़ात डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, स्पेशल पैकेजेस भी ऑफर किए जाते हैं टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और उनको फिर उनसे मजीद बिजनेस लेने की कोशिश की जाती है. बहुत सारे बैंक्स पाकिस्तान में ये मैं अब इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल हमारे कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं. वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके मुख्तलिफ सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन्स एंड ऑल दैट वो ऑफ़र करते रहते हैं. इसी तरह इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ़र होती रहती हैं. सिमिलरली जो सेल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कभी उनकी अगर कोई इंटरनेट सर्विस है तो वो ऑफ़र करते हैं, कभी सेकंड सिम सिमिलर नंबर की सेकंड सिम ऑफ़र करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऑल ऑफ दैट इज़ बेसिकली कस्टमर एक्सटेंशन. सो द आइडिया इज़ कि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस किस तरह ले सकते हैं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए. तो हमने कस्टमर लाइफ साइकिल में हमने चार स्टेप्स डिस्कस किए. पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स. पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमें कहाँ से मिलेंगे. सेकेंड इज एक्विजिशन, हाउ वी आर गोइंग टू एंड वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दीज काइंड ऑफ पीपल आउट. थर्ड इज वंस द कस्टमर्स आर विद यू, तो फिर उनको रिटेन कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द कस्टमर हु इज अवर्स शुड रिमेन अवर्स फॉर अ लॉन्गर टर्म. एंड फाइनली वंस अ कस्टमर इज योर्स, तो उससे फिर मजीद बिजनेस कैसे लेना है, दैट्स कस्टमर एक्सटेंशन. ओके जी, लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर ऑफ मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. We started off with what is marketing. We discussed the definition and we talked about market analysis, customer analysis. We discussed about segmentation, types of segments. We talked about motivation that customers have because of which they are buying our product. And we also discussed the unmet needs part. We discussed how we actually target certain segments and why we target certain segments. And then we moved on and talked about the marketing mix. Initially we discussed the 4 P's of marketing, which include the product, its price, its promotion, and the place through which you distribute that. And then we discussed that when we are talking about electronic marketing or any kind of marketing of services, तो फिर हम 3 P's और ऐड करते हैं जिसके अंदर शामिल हैं people, processes and the physical evidence. तो ये 7 P's हमारे लिए relevant हो गए whenever we are talking about marketing of services और electronic marketing. इसके बाद हमने ई मार्केटिंग पे थोड़ी सी बात की. हमने कहा कि इट शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने 6 I's की बात की. उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से थ्रू CRM हम कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं और फिर कस्टमर्स को रिटेन करके उनसे फर्दर बिजनेस लेने की कोशिश करते हैं. फाइनली हमने डिस्कस किया कि इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि प्राइसिंग क्या होती है, किस तरह की डिफरेंट प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है और व्हाट आर द वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली अडॉप्ट. आज मार्केटिंग के चैप्टर के लिए आज हम यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. ओके जी, मार्केटिंग की जब हम बात करें, हाउ कैन वी फॉरगेट द टर्म प्राइसिंग इन मार्केटिंग. प्राइस है क्या? प्राइस इज बेसिकली द कॉस्ट दैट यू आर चार्जिंग फ्रॉम योर कस्टमर. बट वाइल डिसाइडिंग द प्राइस, आप किन चीज़ों पे नज़र रखते हैं? आप सबसे पहले नज़र रखते हैं ऑन व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग. दैट्स प्राइमरी.
because without knowing the cost you cannot really charge the right price. But at the same time you need to keep an eye on your customers as well, that what are the expectations of the customers. क्या वो ज़्यादा प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, क्या ये कोई प्राइस इलास्टिक मार्केट है या प्राइस इन इलास्टिक मार्केट है. सो यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ प्राइस कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग. वी कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर the competition. There is a possibility that in certain cases you might be selling something at a higher price for some time, but because of competition आपको price नीचे ले जानी पड़े. So you have to keep an eye on your competitors as well. And finally, organizations use pricing for strategic objectives. In the longer run, कोई भी organization ये नहीं चाहती कि वो profitable ना हो. So for the long-term survival and growth, price is the main source of revenue for the organizations. It's like the blood flow, it's like the food for the organization, और उसके बगैर organizations नहीं चल सकती. Now what are the things that we try to achieve through pricing? बहुत सारी organizations के लिए survival की जंग होती है ये, that they charge a reasonable price. Without that they cannot survive. For certain organizations it's all about profitability. So if they charge a good smart price, they will be able to get good profits, and this is what they are looking for. For some companies, the major challenge is the market share. So they try and charge a smart price which enables them to enter into a certain market. कुछ companies pricing को अपने cash flows maintain करने के लिए use करती हैं, because they need certain cash flows at a certain time. तो उस time पे वो discounts देके या उस time पे special offers देके वो अपने cash flows बेहतर रखती हैं. There are certain companies जो status quo maintain करती हैं. Now what is that? अगर आप गौर करें तो Pepsi और Coke, they usually although there is one historical event when they fought on price, but otherwise they do not fight on price. They maintain a status quo, and when they maintain a status quo, they are actually making sure that they get a standard price for their product, and this is what they are looking for. इसी तरह से, my dear friends, quality का perception भी price के साथ connected है. How? If let's say if there are two items available, आप एक ball point लेने जाते हैं और आपको पता चलता है there is one ball point available for 10 rupees and the other one is available for 50 rupees, you will automatically say that the 50 rupee one is better in quality. This is psychological. So certain companies use price, in order to project a higher quality of their brand. आइए जी अब देखते हैं what are the normal usual methods that organization use for pricing. कुछ organizations penetration pricing use करती हैं, whereby they use a smaller or a lower price in order to penetrate into a certain market. कुछ organizations periodic discounting पे believe करती हैं कि वो कुछ अरसे के बाद एक special discount offer करती हैं, 5 रुपए की बचत, 10 रुपए की बचत के ads आते हैं. What are they trying to do? They are actually trying to increase the demand by giving you a price break. इसी तरह से there are organizations जो going rate पे चलती हैं, उनकी अपनी कोई fixed pricing policy नहीं होती. What they only believe in is the fact that whatever the competitors are doing, उसके एक proportion के साथ वो adjust करते हैं. For example, एक time था when in the cell phone industry, Mobilink used to say that we will be 10% ahead of, or we will be 10% higher than Instaphone. So whatever Instaphone used to charge, they used to charge 10% above that. So basically ये going on rate की एक example इस तरह से ली जा सकती है. कुछ कंपनीज प्राइस स्किमिंग पे भी बिलीव करती हैं. प्राइस स्किमिंग क्या है, आप कभी नोट कीजिए, जो नए मोबाइल सेट्स आते हैं, जिस वक्त वो ब्रांड न्यू मॉडल्स होते हैं, उस वक्त बाज़ लोग वो सेट्स समटाइम्स दे पे 100,000 रुपीज़ फॉर दैट सेट, बट इन 6 months टाइम द प्राइस कम्स डाउन और वही सेट जो है वो 40,000 रुपये का मिलने लगता है मार्केट में. सो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग हु आर बेसिकली इन लव विद टेक्नोलॉजी एंड हु आर रेडी टू स्पेंड मोर मनी, उनको आप एडवांटेज देते हैं, और जब वंस दे आर स्किम्ड, यानी उनका वो जब आप वो बलाई उतार लेते हैं, तो उसके बाद फिर मार्केट को आप एक नॉर्मल प्राइस पे वही प्रोडक्ट आप ऑफर करने लगते हैं. बाज़ कंपनीज जो हैं दे आर नोन एज लॉस लीडर्स टू, और इसी के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बेट प्राइसिंग का भी है. लॉस लीडर्स वो होते हैं जो किसी एक ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं मार्केट में जिसकी प्राइस वो मार्केट से कम ऑफर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ मैक्रो किसी प्रोडक्ट पे क्या, सारी मार्केट में चीनी 70 रुपये किलो मिल रही है और मैक्रो कहेगा जी हमसे 55 रुपये किलो ले लें, तो ज़ाहिर है लोग जाएंगे वहाँ चीनी लेने. हाउएवर
At the same time, they believe that once people come in, they buy some other products too. So वो जो loss इस जगह bear करेंगे, they expect कि वो दूसरी जगह cover कर लेंगे. यही concept bait pricing का भी है. जिस तरह से आप एक product की कुर्बानी देके या एक कुछ margin की कुर्बानी देके you bring in customers with the hope and expectation that they will bring in more business and you will be able to charge more price. Bundled pricing is also a concept जहाँ पे आप कहते हैं कि जी you buy a set of 5 or you buy a set of 6 or 2 or whatever and you will get a special discount. वो जो buy one get one free वाला concept है वो भी इसी तरह से है. So आप देखेंगे बहुत सारे साबुन ऐसे हैं, कपड़े धोने के साबुन ऐसे हैं या बाज़ डिटर्जेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पूरे पूरे पैक्स होते हैं, बंडल्स होते हैं. You buy them, you get a smart discount and the organization gets a larger amount of money from you. So these are all, the normal pricing methodologies which organizations are adopting around us.